شیعہ کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی. یہ بحرین میں ایک مرتبہ بحران آیا. وہ انار آ گئے جن پہ نقش فٹ تھا کہ لا الہ الا اللہ فلاں صاحب خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ فلاں صاحب خلیفۃ اللہ. منبر پاک ہے، ماحول پاک ہے، نام نجس ہے، لینے گوارا نہیں کر رہا. سمجھدار لوگ ہو، پہنچ خود جانا. وہ انار آ گئے لا الہ الا اللہ فلاں صاحب خلیفۃ اللہ. کہا بلاؤ، بتائیں کہ یہ تو معجزہ ہو گیا، یہ تو کرامت ہو گئی، یہ کیسے ہو گیا. اس دور کے سید تھے، عالم دین تھے سید محمد. سید محمد کو بلایا گیا. پتہ چلا کہ جب معاملہ حل نہ ہو تو پھر سادات سے ہی مدد مانگی جاتی. بلاؤ سید کو. سید محمد آئے بلا تشویش. جس بندے نے بخل نہیں کرنا، جن کے دلوں کے تخت پہ وارث زمانہ کا قبضہ ہے، وہ میری طرف دیکھنا. اور جس کے دل میں مولوی رہتا ہے وہ بے شک نہ بولنا. اس کے لیے وہ اس کا بولنا اور مرتضیٰ کو گالی دینا ایک برابر ہے. جس بندے کے دل میں علی کا تخت بچھا ہوا ہے اس کی داد میرے لیے ضروری ہے. وہ حلالیوں کی طرح ضرور بولے گا، بخل نہیں کرے گا. سید محمد آئے، پوچھا گیا کہ بتاؤ یہ تو معجزہ ہو گیا، یہ تو معجزہ ہو گیا، نار پہ نقش فٹ ہو گیا. سید محمد نے کہا کہ ہمیں 3 دن کا وقت دو، 3 دن کے بعد بتائیں گے. 3 دن کی مہلت مانگی. مہلت مانگ کے بعد صحرا بھی آ گئے، مصلی بچھایا. 3 دن تک امام زمانہ بادشاہ کو پکارتے رہے. 3 دن گزر گئے، وارث زمانہ نہ آئے. جب وہ واپس جانے لگے، سر جھکا ہوا ہے. راستے میں ایک مسافر ملا جو اپنے مقدر کی طرح جاگ رہا ہے. راستے میں مسافر ملا. فرمایا کہاں گئے تھے؟ فرمایا صحرا میں امام زمانہ کو مدد کے لیے پکارنے گیا تھا. فرمایا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا وہ اناروں پہ نقش فٹ ہے. وہ کہتے ہیں معجزہ ہو گیا، ہم نے 3 دن کی مہلت مانگی ہے، مہلت ختم ہو گئی، واپس جا رہا ہو. وہ مسافر کہتا ہے سید محمد کیا پروگرام ہے، پڑھو گے کلمہ؟ سید محمد کہتے ہیں ہم مر تو سکتے ہیں. جاگنا ذرا، جاگنا حلالیوں کی طرح. فرمایا مر تو سکتے ہیں لیکن کلمہ پڑھنا گوارا نہیں کر سکتے. جیسے ہی سید محمد نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا، وہ مسافر کہتے ہیں پھر جا کے ان کو چیلنج کرنا، چیلنج کر کے کہنا کہ جس گھر سے یہ انار آئے ہیں اس مکان کی بالائے چھت پہ وہ سچے تیار کیے گئے ہیں جو اناروں پہ فٹ کیے جاتے ہیں. اس سے یہ نقش ہو جاتا ہے. اگر پھر نہ مانے تو ان کو چیلنج کر کے کہنا کہ اناروں کو چیرو. اگر اندر سے خاک نکلے تو ہم سچے، اگر دانے نکلے تو تم سچے. سید محمد فوراً قدموں میں گر گیا، کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. میں نے کہا سید محمد تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ یہ امام زمانہ ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ معرفت امام ہے کہ جو اندر کو جانے وہ امام ہوتا ہے، تو باہر کو جانے وہ امام ہوتا ہے. اگر اندر سے دانے نکلیں تو تم سچے، خاک نکلے تو ہم سچے. سید محمد قدموں میں گر کے کہتا ہے مولا اتنا ہی بتانا تھا تو پھر 3 دن کے بعد کیوں آئے؟ جب کہا نا 3 دن کے بعد کیوں آئے، سرکار کا چہرہ سرخ ہو گیا. جلال میں کہتے ہیں سید محمد یہ ہم سے پوچھتے ہو کہ 3 دن کے بعد کیوں آئے؟ یہ تم نے دربار میں 3 دن کی مہلت کیوں مانگی تھی؟ آئے آئے آئے
थी? पूछते हमसे हो, ये मोहलत क्यों मांगी थी? तो दरबार में खड़े होके चैलेंज करके कहता कि अभी बताता हूं, तेरे चैलेंज करने में देर होती, मेरे आने में देर ना होती। और कुछ नहीं कर सकते। पुकारो तो सही ना खातून ने क़यामत के बेटे को, पुकार तो सकते हो। 1400 साल गुजर गए जब पर्दा गैबत में बैठ के आज भी खून रो रहे हैं। दिल चाहता है कि आवाज़ मजलिस है, जिन लोगों के ज़िम्मे ड्यूटियां हैं, तुम्हें तुम्हारी अजमत से आगाह करता चलो। कोई बंदा ये ना समझे कि जी फलां छोटा है, मैं दौलत वाला हूँ, मुझे कोई काम करने के लिए कह रहा है तो मैं काम की अजमत बताने लगा हूँ। एक मोमना माई थी जो हर साल आज़ादारी करवाती थी, इंतज़ाम करती थी, बंदोबस्त करती थी। लोग आते, मस्तूरात आती, जी भर के पुरसा होता, बतूल के बेटों का आह बका होता, मातमदारी होती, वो अपने अपने घरों में वापस चली जाती। एक साल ऐसा आया कि वो औरत मफलूज हो गई, बीमार हो गई, उठ नहीं सकती थी। इधर चांद मुहर्रम का तलू होने वाला था, या उसकी आंखों में आंसू थे। रो के कहती है, आकाज़ादी चांद भी मुहर्रम का तलू होने वाला है, मैं भी बीमार हूँ, मैं भी उठ नहीं सकती। अब तेरे बेटों की आज़ादारी कौन करवाएगा? तेरी बेटियों की लुटी हुई चादरों को कौन रोएगा? इसका इतना कहना था, या दरवाजे पे दक्कल बाब हुआ, आवाज आई कौन? आवाज आई मैं अंदर आ सकती हूँ। फरमाया आजा। अंदर आई, माई क्या बात है, परेशान क्यों है? फरमाया आसमान पे चांद मुहर्रम का तलू हो गया है, सोच रही हूँ कि इस साल बतूल ज़ादियों का गिरिया कौन कैसे होगा, आज़ादारी कैसे करवाऊंगी। तो आगे से मखदूमा कहती है, बीबी कहती है, माई तू परेशान ना हो, अगर तेरा सारा काम मैं कर दूं फिर तो तू आज़ादारी करवाएगी ना। कोई बंदा शर्म करके न रोए, जो काम करते हो। ये जुमला मैं तुम्हारी अजमत के लिए पढ़ने लगा हूँ। कहा अगर तेरे सारे काम मैं कर दूं फिर तो तू हुसैन की सफ़े अज़ा बिछाएगी ना। वो माई कहती है, मैं तेरी मशगूल हूँ, मैं तेरी ममनून हूँ, मैं तो उठ नहीं सकती। वो बीवी सारा दिन काम करती, कभी बर्तन साफ करती, कभी घर में झाड़ू देती, कभी वो दरिया बिछाती। जब 8 गुजर गई ना, 9 का दिन आया, वो बीवी करीब आके कहती है, माई मैंने तेरा कल का भी काम कर दिया है, अब तो मुझे इजाजत है ना, अब मैं चली जाऊं। वो बीवी कहती है, आज क्यों जा रही है? आज की रात ही तो सदात की मुश्किल रात है। सलामत रहो भाई, कर दिया मातम, दुआएं भी मांग दिया ना। कहा बीबी सलामत रहो भाई, अदरो कबल कहा बीबी मैंने कल का भी तेरा सारा काम कर दिया है, अब तो मुझे इजाजत है ना, मैं जाना चाहती हूँ। वो आगे से माई कहती है, बीबी आज की रात को बतूल की बेटियों पे मुश्किल रात है, क्यों जा रही है? वज़ादारा रोने वालों, जब कोई काम करता है आप उसकी खिदमत नहीं करते, कोई पैसे से करता है, कोई शुक्रिया अदा करके करता है। उस माई ने कुछ थोड़े से पैसे दिए, बीबी मैं तेरी ममनून हूँ, तूने सारे काम किए, तेरी वजह से हुसैन की बहनों की आज़ादारी हो गई, हुसैन की सफ़े अज़ा बिछ गई। जब कटली सामने पेश की, बीबी की चीखें निकल गई, रो के कहती है, माई मुझे बता कोई बेटों की भी आज़ादारी की उजरत लेते? अजरत मिल्लल्लाह, कहा मैं हुसैन की माँ हूँ और मैं बतूल हूँ, मैं बगिया छोड़ के आ गई हूँ। और रोने वालों और आज़ादारों, कोई काम नहीं जाए, बर्तन साफ करने का, पानी देने का, कोई काम नहीं जाए, फक्र से काम किया करो कि जब भी तुम आते हो दरवाजे पे तुम्हारा मौला अली इस्तकबाल करते हैं। अज़ादारों तुम्हें अपने रोने की अजमत का पता चले कि जब तुम वापिस जाते हो ना, जिसका हाथ पहलू से जनाब फिजा नहीं उठा सकी, वो हाथ पेशानी पे रख के कहती है, और मेरे बेकफन बेटे को रोने वालों, मैं बतूल तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ।
मत रहो भाई। अजरकम अल्लाह। आज चांद रात है, चांद मुहर्रम का तलू हुआ है। ये वो चांद है जिसमें बतूल का सारा चमन उजड़ गया है। किसी ने पाकिस्तान में फोन करके पूछा कि मुहर्रम का चांद तलू हो गया है। हमारी कौम के नौजवान ये नहीं पूछते कि ईद उल फितर कब है। हर बहन को इंतजार है, बहनें इंतजार कर रही है कि मेरा भाई मुहर्रम को आ जाएगा। बहनों को इंतजार होती है, घरों में बैठ के बहनें ये नहीं कहती कि मेरा भाई ईद को आ जाए, ईद उल ज़ुहा को आ जाए। हर बहन को इंतजार है कि मेरा भाई मुहर्रम को आ जाएगा। वो बहन जो 28 रजब से जिसका अकबर बिछड़ गया था, जो अकबर के नक्शे कदम पे अपना दाएं रुखसार रख के इंतजार करके देख रही थी कि अकबर आ जाएगा। तुमने सुना है ना, तुम तो सुन के बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जिसके सारे बिछड़ गए, जब उसने चांद मुहर्रम को देखा, आंखों में आंसू है, जिगर जनाबे सुगरा का फट गया है। चांद को देख के कहती है, चांद तेरी चांदनी को बचाने के लिए मेरा 18 साल का चांद घर से चला गया। जनाबे रुबाब ने देखा, देख के कहती है, चांद तेरी चमक तो बाकी रहेगी, मेरा 6 माह का चांद है। तो पहली को चमकेगा, तो 10 को चमकेगा, 10 के बाद भी चमकेगा, लेकिन मेरा चांद तो गरूब हो जाएगा। सहरा में अली की बेटियों ने चांद को देखा है। और रोने वालों अज़ादारों, जितना रो चुके हो आज की मजलिस में काफी है, लेकिन एक मंजर बुलंद करो। जो करबला और शाम से आए हैं, रोते हुए वारिस ज़माना को पुरसा जरूर देना, क्योंकि इस सफ़े अज़ा के हकीकी वारिस यही है। बंदा चाहे जितना मर्जी आ जाए, किसी को आए पुरसा देने के लिए घर से बाहर बैठा रहे, अगर वारिस के साथ ताज़ियत ना की जाए तो फिर आने का मकसद ही कोई नहीं है। इस सफ़े अज़ा का हकीकी वारिस जो पर्दे गैबत में बैठ के खूब रो रहा है, उसको जरूर पर्दे में बैठ के रोने वाले को पुरसा देना और रो के कहना, मालिक के ज़माना आपकी आंखों को सुकून मिल जाए, आपकी आंखों का खून बंद हो जाए, आप भी आ जाए और आपका चमन फिर से आबाद हो जाए। ये दुआ जरूर मांगना, पहली और आखिरी सबसे बड़ी दुआ है। अगर पाक सैयदा के चमन की खुशी के लिए दुआ मांगोगे, सैयदा तुम्हारी आबादी के लिए जरूर दुआ मांगेगी। यकम मुहर्रम है, हुसैन बादशाह नाने की कब्र पर बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान पढ़ रहे थे, यह वलीद का सिपाही आया, आके इसने सलाम किया। हुसैन बादशाह ने कुरान की ज़ब्तीन को बंद किया, वलीद के सिपाही को देखा, नाने की कब्र को देखा। मैं पढ़ के आप सुन गए, आंखों में आंसू थे। देख के कहते, क्यों आया है? वलीद ने दरबार में बुलाया है, दरबार का नाम आना था। मेरे मौला फरमाते उसको कह रात को आऊंगा। सिपाही चला गया, नाना की कब्र पे बैठ के रोते रहे। रो के कहते, नाना अब मुझे यकीन हो गया है कि तेरी हाजिरी में दिन हुसैन के कम रह गए हैं। नाना अब मुझे मुसलमान तेरी कब्र पे रहने नहीं दे रहे। काफी वक्त गुजर गया, घर में आई। मखदूमा ज़ादी की आदत थी, नमाज से फारिग होके, मगरिब पहन की नमाज से फारिग होके हवेली के बड़े दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती। बादशाह आते, काफी देर के बाद एक दूसरे को सीने से लगा के मिलते, बातें करते। मखदूमा अपने हुजरे में चली जाती, शबीर मौला अपने हुजरे में चले जाते। जब काफी देर हो गई, मखदूमा को दरवाजे पे खड़े हो गए रोते हुए। हुसैन रोते रोते नाना की कब्र पे गाश कर गए। अल्लाह जाने क्या ख्याल आया, जल्दी से उठे, आके दरवाजे को हाथ लगाया। दरवाजा भारी नजर आया। आवाज आई, कौन है? आवाज आई, कौन हो सकता है? मैं हूं तेरी बहन, तेरे हिस्से की बहन हो। हुसैन तूने इतनी देर क्यों लगा दी? हुसैन की आंखों को देखा, देख के मखदूमा फरमाती है, हुसैन काफी दिनों से देख रही हो कि तू अल्लाह जाने तन्हाई में बैठ के क्यों क्यों रो रहा है, अल्लाह जाने बैठ के अंधेरे में क्यों रोता है। बहन को बता आखिर मामला क्या है। सर झुका के कहते हैं, बहन वली